हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन एंड आज अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज टेक्स प्लेस एट two sides between alveoli of lungs and blood capillaries. Next, between blood capillaries and cells of tissues. एक तो कहाँ पे alveoli of lungs and blood capillaries. Next, blood capillaries and cells of tissues. Next है it takes place by simple diffusion. क्यों? Due to difference in partial pressure of gases. Gases always diffuse from higher pressure to lower pressure. Next, the diffusion of gases depends upon thickness of membrane, solubility of gases, such as the solubility of carbon dioxide is about 20 to 25 times more than the solubility of oxygen, so that the diffusion of carbon dioxide is fast than the diffusion of oxygen. Next, it also depends on partial pressure of gases. तो नेक्स्ट अपन ने देखा कि गैसेस का डिफ्यूजन दो जगह पे होगा, एक तो कहां पर लंग्स के एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच, दूसरा ब्लड कैपिलरीज और सेल्स टिश्यूज के सेल्स के बीच. क्यों, किस तरह से होगा? बाय सिंपल डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर. And diffusion of gases is also depends on thickness of the membrane, solubility of gases and partial pressure of gases. Next, in lungs, the exchange of gases or diffusion of gases takes place through respiratory membrane. Respiratory membrane. Respiratory membrane is consists with three layers, that is alveoli, blood capillaries, endothelium layer, these three layers are squamous, simple epithelium.
simple squamous simple epithelial layer of alveoli of lungs. Next, endothelium of blood capillaries. एंड थर्ड, दोनों के बीच में भरा हुआ लिक्विड, इसको अपन बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट विथ 3 layers: squamous simple epithelium of alveoli of lungs, endothelium of blood capillaries and basement membrane. तो यहां पर देखा अपन ने डिफ्यूजन. अब किस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अपन अभी देखते हैं. एल्वोलाई pulmonary artery, left part of heart, right part of heart, aorta, tissues, vena cava, pulmonary vein carry deoxygenated blood from right part of the heart to lungs, and pulmonary artery carry oxygenated blood from lung to left part of heart. यहां पर आप देखेंगे इंस्पायरेटरी एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज करीब 20.8 और इंस्पायरेटरी एयर में CO2 का परसेंटेज 0.04%. That is, in expiratory air, O2 is about 16% and CO2 is about 3.5%. The percentage of oxygen and carbon dioxide in inspiratory air and expiratory air. Inspiratory air में ऑक्सीजन करीब 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%. एक्सपायरेटरी एयर में ऑक्सीजन 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 3.5%. The pulmonary vein, pulmonary artery, no vein. Pulmonary artery carry deoxygenated blood from right part of the heart to lungs, and pulmonary vein carry oxygenated blood from lung to left part of the heart. The pulmonary artery जिनमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड में PO2 है 40 mmHg और PCO2 है 45 mmHg. यहाँ पर लंग्स में देखें तो लंग्स में देखें PO2 104 mmHg and PCO2 about 40 mmHg. तो देखें डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स एंड ब्लड कैपिलरीज. क्यों? ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर. यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg, यहाँ पर 40, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड को देखोगे
तो ब्लड में कितना है 45 mmHg और एलोलाई में 40 mmHg। तो ये हुआ डिफ्यूजन। इसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें PO2 होगा 95 mmHg एंड PCO2 होगा 40 mmHg। लेफ्ट पार्ट में आएगा, आउटा और आर्टरीज के थ्रू कहां पहुंचेगा? टिश्यूज में। टिश्यूज में पहुंचेगा तो यहां पर PO2 कितना है 95 mmHg एंड PCO2 40 mmHg. But the cells of our tissue continuously consume the oxygen and release carbon dioxide, so that in tissues the PCO2 is 45 mmHg and PO2 is 40 mmHg. तो यहां पर देखें दूसरा डिफ्यूजन कहां पे हो रहा है? ब्लड कैपिलरीज एंड सेल्स ऑफ टिश्यूज। यहां पर PO2 95 और यहां पर 40, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड इनटू टिश्यूज। CO2 45 एंड 40, तो CO2 डिफ्यूज्ड इनटू ब्लड। अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीनेटेड, जिसमें PO2 40 mmHg and PCO2 45 mmHg. This blood is enters into right part of atria through vena cava, and then the deoxygenated blood is carried by pulmonary artery from right part of the heart to lungs. तो देखिए गैसीय डिफ्यूजन दो जगह पे हो रहा है। सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है, पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस के कारण से हो रहा है। यहां पर देखें स्टेटमेंट देखें, द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट हैव PO2 अबाउट 95 mmHg एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट पार्ट ऑफ द हार्ट टू lungs have PO2 about 40 mmHg. तो ये था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब जब गैसेस का डिफ्यूजन होता है किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन solubility of gases, thickness of membrane and also depends on partial pressure of gases. उसके बाद वो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। सबसे पहले पता करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। अबाउट 3% of O2 is transported by plasma. About 3% of oxygen is transported by plasma in dissolving form, and about 97% of oxygen is transported by hemoglobin in the form of oxyhemoglobin. Oxygen plus hemoglobin, high PO2, oxyhemoglobin, लो PO2। देखिए हाई PO2 कहां पे मिलेगा आपने को? लंग्स में, और लो PO2 टिश्यूज में। इसका मतलब लंग्स में तो प्रोसेस कैसा होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर के अपना रही है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और टिश्यूज में बिल्कुल रिवर्स हो रहा है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट हो रही है,
जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन के काम में ले लिया जाता है। अब यहां पर देखेंगे, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ hemoglobin can transport about 4 molecule of oxygen. 1 gram of hemoglobin can transport about 1.34 ml of O2, and normal amount of hemoglobin in our blood is about 15 gram per 100 ml blood. नॉर्मली हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन का अमाउंट कितना है? 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। तो यहां पर देखिए, वी कैन से दैट 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 1.34 into 15, about 20 ml of O2 in normal condition. 100 ml of blood can transport about 20 ml of oxygen in normal condition, and it delivered only 5 ml O2 to tissues. लेकिन टिश्यू कितने डिलीवर कर रहा है? 5 ml. बट इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस 100 ml ऑफ ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अबाउट 15 ml ऑफ O2 एंड डिलीवर्ड अबाउट 4.4 ml O2 टू टिश्यूज। यानी नॉर्मल कंडीशन में 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, लेकिन टिश्यूज को कितनी सप्लाई कर रहा है? 5 ml. लेकिन इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस 100 ml of blood can transport about 15 ml of O2 and it delivered only about 4.4 ml of O2 to tissues. Next यहां पर देखते हैं, the binding capacity of oxygen with hemoglobin is depends upon partial pressure of O2. It represented by ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। तो यहां पर अपन देखेंगे, देखिए सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, और इस साइड में देखते हैं अपन PO2। 20 mmHg, 40 mmHg, 60 mmHg, 80 mmHg and 100 mmHg। 20%, 40%, 60%, 80% and 100%। तो ये कर्व जो होगा वो सिग्मोइड कर्व होगा, जो होगा। तो यहां पर देखिए आप, करीब 30 mmHg प्रेशर पर about 50% ऑफ हेमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड इन नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में P50 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 mmHg। P50 मीन्स 50% हेमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए जो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड पार्शियल प्रेशर है उसको अपन कहेंगे वैल्यू ऑफ P50। तो नॉर्मल कंडीशन में P50 की वैल्यू कितनी है? 30 mmHg।
अब पार्शियल प्रेशर को बढ़ाकर अपन इंक्रीज करके 40 mmHg कर देते हैं। तो यहां पर देखें 40 mmHg प्रेशर पर कितने परसेंट, अबाउट 75% हीमोग्लोबिन क्या है, सैचुरेट हो जाता है। और 95 mmHg प्रेशर पर करीब 97% हीमोग्लोबिन वो क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। और हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 की वैल्यू कितनी है, 95 mmHg। तो अपन ने क्या कहा कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखें इस कंडीशन में अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या चेंज किया अपन ने कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सेम है, बट PCO2 को बढ़ा दिया या HI कंसंट्रेशन बढ़ा दी या बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया या ब्लड का pH कम कर दिया। इस कंडीशन में देखेंगे आप दिस कर्व है, shifted to राइट एंड इस कर्व का राइट में शिफ्ट होना ही क्या है, बॉहर इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको, बॉहर इफेक्ट। तो द फैक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉहर इफेक्ट, PCO2, हाई PCO2, हाई HI कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर एंड लो pH। अब इस कंडीशन के अंदर देखिए आप कि P50 की वैल्यू कितनी होगी, करीब 40 mmHg। इसका मतलब द फैक्टर्स ऑफ बॉहर इफेक्ट increase the value of P50, or we can say that they reduce the affinity of O2 विद हीमोग्लोबिन। यानी बॉहर इफेक्ट के जो भी फैक्टर हैं वे फैक्टर P50 की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, और P50 की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स है वो किसके लिए हैं, बॉहर इफेक्ट के लिए हैं। तो ये देखा अपने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन किस फॉर्म में, मेनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। तो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट मेथड से हो रहा है। जैसे सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं CO2 की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। अबाउट 7% of CO2 is transported by plasma in dissolving form. About 7% of CO2 is transported by plasma in dissolving form, and about 23% of CO2 is transported by hemoglobin in the form of carb amino compounds. यानी about 23% CO2 is binds with amino group of hemoglobin and form
carb amino compounds and transported in the form of carb amino compounds. And most of the carbon dioxide, about 70% of carbon dioxide is transported in the form of bicarbonates as sodium and potassium bicarbonates. तो देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स 7% तो प्लाज्मा के थ्रू, 23% हेमोग्लोबिन द्वारा और 70% बाइकार्बोनेट्स. तो देखते हैं अपन इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. तो यहां पर देखेंगे अपन सेलुलर रेस्पिरेशन में बनने वाली ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहां आ रही है? ब्लड में. यहां पर देखिए आप प्लाज्मा और आरबीसी दोनों में डिफ्यूज हो रही है. तो आरबीसी में क्या होगा? द कार्बन डाइऑक्साइड इज बाइंड्स विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड in the presence of carbonic anhydrase enzyme which catalyze the reaction. The carbonic acid is ionized and gives bicarbonate ions and hydrate ions. अब यहां पर देखेंगे आप the concentration of carbonic acid is more in RBC than plasma because RBC have high concentration of carbonic anhydrase enzyme and which acts as a catalyst in this reaction. So that the concentration of bicarbonate ions are more in RBC than plasma. The bicarbonate ions are diffused into plasma and for maintain the pH of blood, the chloride ions of plasma are diffused into RBC. This phenomenon is called क्लोराइड शिफ्ट. इसको अपन क्या कहेंगे? क्लोराइड शिफ्ट. अब देखो प्लाज्मा में डिफ्यूज होने वाले बाइकार्बोनेट आयंस, they are binds with sodium and potassium and form sodium bicarbonate and potassium bicarbonate, and about 70% of carbon dioxide is transported in the form of sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. As compared to potassium bicarbonate, sodium carbonate, the concentration of sodium carbonate is more than the potassium bicarbonate. क्यों? Because in extracellular fluid, extracellular fluid में हमेशा सोडियम की कंसंट्रेशन अधिक होगी और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमेशा पोटेशियम की कंसंट्रेशन अधिक होगी. तो प्लाज्मा इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन अधिक होने के कारण से सोडियम बाइकार्बोनेट है वो अधिक मात्रा में बनेगा. अब ये सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स कहां पर? ब्लड के थ्रू जब लंग्स में एंटर होते हैं तो दे आर ब्रेक्स ड्यू टू acidic nature of oxyhemoglobin and they gives HIN
ऑल्सो गिव्स, इस तरह से यहां पर CO2 रिलीज हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट। इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे? हेल्डन इफेक्ट कहेंगे। अब यहां पर देखिए, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं कहां पर? लंग्स में। लंग्स में आने के बाद ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं दे आर फर्दर डिफ्यूज्ड इनटू आरबीसी, और आरबीसी के जो क्लोराइड आयन है वो वापिस कहा जाते हैं? प्लाज्मा में आ जाते हैं। इसका मतलब आयन एक्सचेंज दो जगह पे होता है। पहले तो कहां पे होता है कि आरबीसी और प्लाज्मा में, और उसके बाद में कहां पे हो रहा है? प्लाज्मा से वापस कहां पे हो रहा है? आरबीसी में हो रहा है। यह प्रोसेस कहां पे हो रहा है? लंग्स में जाने के बाद में हो रहा है। तो देखिए, अब यहां पर अपन ने देखा कि प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो करीब 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा एंड अबाउट 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। इसका मतलब द solubility of carbon dioxide in plasma is about 20 to 25% more than the solubility of oxygen। यानी प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड की सोल्युबिलिटी ऑक्सीजन की अपेक्षा करीब 20 to 25 टाइम्स अधिक है। इसी तरह से अपन बात करें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कितना? करीब 97%। और यहां पर CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कितना? 23%। इसका मतलब द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मोर देन द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। यानी प्लाज्मा में सोल्युबिलिटी तो किसके अधिक है? कार्बन डाइऑक्साइड की। और हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो किसके अधिक है? वो ऑक्सीजन के अधिक है। एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज अबाउट 200 to 300 times more than the solubility of oxygen in plasma। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की सोल्युबिलिटी सबसे अधिक होगी। एंड विच बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड। तो अपन ये कह सकते हैं कि द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मच मोर देन द एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन से 200 और 300 टाइम्स मोर एफिनिटी है किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। और वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर के एक स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन घट जाता है। ये अपन बाद में देखेंगे। तो आज अपन ने देखा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग।